Greetings my dear students, how are you? I hope you all are fine and you all are doing your work sincerely and honestly. My dear students, it's a request that you have to take care of yourself and your family. My dear students, this second wave is more harmful than the first wave, so we have to take care of ourselves, okay? Don't move outside with any unnecessary work. If you and your family is safe in this situation, this is your victory. So my dear students, please take care of yourself, okay? And my dear students, in last video we discussed exercise 2.5 and in this video we will discuss our 12th sum, okay? And in this 12th sum we have to verify x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 1 by 2 into x plus y plus z into x minus y square plus y minus x z square plus z minus x square, okay? And my dear students, yesterday we did a identity and this identity we use in this sum to verify this, okay? Verify means we have to prove left hand side and right hand side equal, okay? There are two ways of verification. First way, we have to take left hand side and use this left hand side we can prove right hand side, okay? And the second that you can use any identity and with the help of this identity we can solve our sum, we can verify these two terms, okay? देखो एक है, firstly you have to open these three terms and you have to multiply these two expressions and the answer will be this, okay? And the second, this is very easy and an important concept that we have to use identity and we can solve this, okay? So now we can use identity and we have to solve this sum using identity. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. This is identity that we did this identity yesterday. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. My dear students, we use this identity and check that in this identity and the given expression this side is same, left hand side same है, ठीक है? हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करके हम ये दो एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट और राइट इक्वल दिखाएंगे, ओके? अब मैंने इस आइडेंटिटी को अपनी फर्स्ट लाइन कंसीडर किया है, तो इस फर्स्ट लाइन में दिस साइड एंड दिस साइड इज सेम, इट मीन्स मुझे इस सेकेंड एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूव करना है, ओके? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू दिस टर्म. अब चेक करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. दिस टर्म एंड दिस टर्म इज सेम, ये एक्सप्रेशन सेम है. यहाँ देखो हमें यहाँ नीचे 1/2 चाहिए, ठीक है ना? 1/2 चाहिए, बट यहाँ तो 1/2 नहीं है, तो हमने हिंट ले लिया अपने गिवन टर्म से, जो गिवन एक्सप्रेशन है कि मुझे राइट हैंड साइड में 1/2 चाहिए, ठीक है ना? अब 1/2 कंसीडर करने के लिए मैं अब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी इस राइट हैंड साइड को और 2 से ही डिवाइड, क्योंकि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से डिवाइड भी करते हैं, ओके? तब वो एक्सप्रेशन सेम होते हैं अपने लास्ट एक्सप्रेशन के. तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, multiply and divide both side by multiply and divide right hand side करना है, not left hand side, right hand side by 2, ठीक है ना? मैंने इस राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि अब 2 से डिवाइड करने पर 1/2 आ जाएगा, ओके? तो सोल्व दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना? क्रॉस 2. माय डियर स्टूडेंट्स, 1/2 लुक हियर, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ओके? या आप इसे 2/2 भी लिख सकते हो. दिस इज सेम एज 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड. अब बाकी एक्सप्रेशन को सेम एज इट इज लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ओके? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नीचे वाले 2 को यही रहने देना क्योंकि हमें नीचे 2 चाहिए. अब जो अपसाइड 2 है ना, उस देखो
अब ये दोनों एक्सप्रेशन मल्टीपल में है, ठीक है ना। मैं इस 2 को इस वाली साइड में कॉमन मल्टीपल कर दूंगी, इस 2 को अंदर भेज देंगे ब्रैकेट के, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 1/2 है ऐसे रहने दिया, इस 2 को मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन सेम कर रख दूँ, ठीक है ना। इस 2 को इस ब्रैकेट के अंदर मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अब इस ब्रैकेट में सबके अंदर 2 है तो बाहर निकलेगा तो उसे यहीं तो रखेंगे हम, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ओके, देखो ये नीचे वाला 2 एज इट इज रहने दिया, जो अपसाइड 2 था उसकी मल्टीपल मैंने इस सेकंड ब्रैकेट के हर टर्म्स के साथ, क्योंकि पूरी ब्रैकेट में सब हर टर्म्स के साथ मल्टीपल होगी ना, एवरी टर्म वी हैव टू मल्टीपल विद 2। ओके, अब देखो अगर ये 2 सबके साथ अगर मैं कॉमन लूंगी तो बाहर आके यही तो बनेगा ना, तो बोथ एक्सप्रेशंस आर सेम। ओके, नाउ अब मुझे जो चाहिए इस ब्रैकेट में, देखो 1/2 एज इट इज आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड है। अब इस सेकेंड टर्म को मुझे सेम बनाना है। ओके, तो हाफ x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ऐसे कैसे सेम रख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो 2x² है, मैं इसे x² प्लस x² लिख सकती हूँ ना, x² प्लस x²। तो मैंने इस 2x² को स्प्लिट कर दिया x² प्लस x² में, ठीक है। 2y² को स्प्लिट किया y² प्लस y² में, और 2z² को स्प्लिट किया z² प्लस z² में, ठीक है। एंड माइनस 2xy एज इट इज माइनस 2yz एज इट इज माइनस 2zx एज इट इज। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ हियर वी कैन पुट एन आइडेंटिटी। देखो x² मुझे चाहिए x माइनस y², x माइनस y² क्या होता है, x² प्लस y² माइनस 2xy। अब मैं क्या करूंगी, ये दीज ऑल टर्म्स है ना, मैं इन्हें 3 टर्म्स का एक पेयर बनाऊंगी, 3 टर्म्स के कुछ पेयर्स बनाऊंगी और उनके अकॉर्डिंग मैं अपनी एक्सप्रेशन आइडेंटिटी को राइट करूंगी, ठीक है। हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। मैंने यहाँ से एक x² लिया, एक y² लिया और एक माइनस 2xy, इन्हें मैंने सबसे आगे रख दिया, ठीक है ना। फिर क्या करना है, फिर आप एक y², देखो एक y² यहाँ चला गया। अब आपने सेटिंग ऐसे करनी है कि हमारा फॉर्मूला बन जाए x माइनस y² का, y माइनस z² का और z माइनस x² का। ओके, अब आगे मुझे y माइनस z² चाहिए ना, देखो एक y² ले लिया, एक z² ले लिया, एक माइनस 2yz माइनस 2yz, ठीक है। प्लस अब क्या रह गया, देखो x² हो गया, y भी 2 हो गया, z भी 1 हुआ है, तो एक x और एक z रह गया। तो इस x² और z² को मैंने यहाँ रखा, ठीक है, एंड माइनस 2zx। ओके, नाउ 1/2 एज इट इज, x प्लस वाई प्लस जेड भी एज इट इज, x² प्लस y² प्लस z² s² प्लस y² माइनस 2xy क्या बन गया, x माइनस वाई होल स्क्वायर। वेरी गुड, x माइनस वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, x माइनस वाई होल स्क्वायर, आप यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब y² प्लस z² माइनस 2yz क्या बन गया, प्लस y माइनस z होल स्क्वायर। ओके, एंड x² प्लस z² माइनस 2zx क्या बन गया, यस x माइनस z, या z मान, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, हम z माइनस x होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस z माइनस x होल स्क्वायर and close this bracket. Yeah, this term is same as the given expression. So this is left hand side and this is right hand side, and in this we have to prove this. So आप लिखोगे hence verified, verify कर दिया, hence verified. Okay, if there is any doubt then you can tell me. This is very easy. This sum we have to prove by using identity. We have to write the identity, and whatever we have to prove, we have to multiply and divide the same number जो given है। तो 2 से मल्टीपल किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है ना। डिवीजन वाले को यहाँ रखा, मल्टीपल वाले को सेकंड ब्रैकेट में अंदर पुट कर कर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर उनमें हमने पेयरिंग करनी है कुछ नंबर्स को करके। क्यों हमने कुछ नंबर्स को इकट्ठा लिखा, बिकॉज मुझे अपनी आइडेंटिटी को बनाना है, ठीक है ना। और ऐसे करते हुए मेरा वही एक्सप्रेशन आया जो गिवन था, जो हमें प्रूव करना था। सो लास्ट में लिखना हैंस वेरीफाइड। ओके, now my dear students, we will discuss our question number 13. This is very easy sum, and in this we have to given, it is given that x plus y plus z equal to 0. This condition is given, and we have to show that
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। माय डियर स्टूडेंट्स, अब x प्लस वाई प्लस जेड गिवन है, हमें 0 के इक्वल है इन तीनों का एडिशन, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। पहले चेक करो कि आइडेंटिटी जो यूज करनी है उसका गेस कैसे लगाओगे। देयर आर 3 टर्म्स, 3 वेरिएबल्स x y एंड z, और हाईएस्ट टर्म क्या है 3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ मल्टीपल भी है तीनों का x y z, तो हमारे पास इससे अलावा से एक आइडेंटिटी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना, जो मैं लास्ट समय भी किया है वही यूज करोगे, ओके। उस यूज दिस इज वेरी सेम, सिर्फ आइडेंटिटी ओपन करो, ये वैल्यू पुट करो, दैट इज द लास्ट इज योर आंसर यूजिंग आइडेंटिटी, या वी नो दैट, आप ये भी लिख सकते हो वी नो दैट, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स, ओके। दिस लाइन इज गिवन, ओके। अब इस हम दिस इज द आइडेंटिटी, एंड इन दिस आइडेंटिटी वी हैव टू गिवन राइट पुट द वैल्यू ऑफ द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन गिवन है हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। आप लिखोगे पुट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, इसे आप फर्स्ट का नेम दे दो, फर्स्ट इक्वेशन इन फर्स्ट, क्योंकि इक्वालिटी है ना तो आप इसे इक्वेशन कह सकते हो, या इन फर्स्ट, ओके। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पे आप 0 पुट करोगे, एंड हेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स, ओके। अब माय डियर स्टूडेंट्स, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी एक्सप्रेशन के साथ कर दो, किसी भी बड़े नंबर के साथ कर दो, कितना ही बड़े से बड़ा हो, बट मल्टीपल में आंसर क्या आएगा 0 ही होगा, ठीक है। तो दैट इज 0, 0 हो गया। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इस इट इज 0, तो मैं इस टर्म को नेगेटिव टर्म को वहां ले जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम ये लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ठीक है ना। मैंने इस नेगेटिव टर्म को इक्वालिटी को उधर ले जाकर पॉजिटिव बना दिया। दिस इज द सेम व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये वही सेम है जिसे हमें प्रूव करना है, शो दैट करना है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, या शोड हो गया या प्रूव, हैंस प्रूव्ड, ओके। दिस इज वेरी सेम, वेरी इजी सम। इन दिस द नेक्स्ट सम इज सेम एज दिस सम। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 इन द गिवन एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो आप क्या आइडेंटिटी यूज करोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ओके। 14th sum of exercise 2.5, and in this it is given that without actually calculating, हमें कैलकुलेट नहीं करना है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग सॉल्व इट। इट मीन्स हमें इन तीनों टर्म्स का क्यूब निकाल कर उन्हें ऐड नहीं करना, ठीक है ना। विदाउट डूइंग क्यूब ऑफ एनी सम वी हैव टू सोल्व दिस, हमें इनका आंसर निकालना है, ओके। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इजी सम। हेयर लेट करो, x की वैल्यू क्या है, लेट x इज इक्वल टू -12, ठीक है ना, एंड y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 5. These are the three terms and I can put these three terms as x, y and z. ठीक है. If x plus y plus z क्या होता है, 0 होता है. This we sum did in the last sum, 13th sum. If x plus y plus z 0, then तब क्या होता है, x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz. Okay. If x plus y plus z 0, then this expression will hold. Now अब check करो, या here x plus y plus z means -12 plus 7 plus 5. This is equal to 0. 7 or 5, 12 plus 12 minus 12. The answer is 0. ठीक है ना? So this expression is 0. Then तब क्या होगा? x cube means -12 का cube plus y cube means 7 का cube plus z cube means 5 का cube. This is equal to 3xyz. X in -12,
Z means Y means 7 and Z means 5. This is our answer. When you multiply this, the answer will be 1260. Okay, and plus minus है ना यहाँ, तो minus आगे आ जाएगा. This is our answer, minus 1260. Okay, so in this we didn't calculate direct cube of any numbers. हमें cube नहीं निकाला, हमने एक identity use किया और फिर हमें answer निकाला. Okay, this is same as second sum is part is also same here in the second part. ठीक है ना, let कर लो. x क्या होगा second part में? 28 and y is minus 15 and z is minus 13. Okay, y is minus 15 and z is minus 13. Now it is we know that x plus y plus z equal to 0. Then x cube plus y cube plus z cube क्या होता है? 3xyz. तो चेक करते हैं कि क्या यहाँ x plus y plus z 0 है. आप लिखोगे here x प्लस, या नाउ भी लिख सकते हो कि अब हम चेक कर रहे हैं नाउ x प्लस वाई प्लस जेड. 28 x है, y माइनस 15 है और z है माइनस 13. ठीक है ना, तो 28 माइनस 15 माइनस 13 होता है माइनस 28. दिस इज ऑल्सो 0. ठीक है ना, 0 आ गया. इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, देन इनके क्यूबिक एडिशन ऑफ देयर क्यूब क्या होगा? 28 क्यूब x क्यूब प्लस y का मतलब माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब की वैल्यू होगी 3xyz. x मीन्स 28, y मीन्स माइनस 15 एंड z मीन्स माइनस 13. माइनस माइनस प्लस, तो आंसर प्लस में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा. आफ्टर मल्टीप्लाइंग द आंसर इज 16,380. और आंसर किस में होगा? प्लस में होगा, क्योंकि माइनस 2 टाइम्स है और माइनस से माइनस की मल्टीपल होती है पॉजिटिव प्लस. ओके, सो दिस इज द आंसर. विदाउट डूइंग द क्यूब ऑफ एनी नंबर्स वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली. ओके, now my dear students, we will discuss 15th sum. In this, give possible expression for length and breadth of the following rectangles in which their areas are. My dear students, in this statement, this is the area of any rectangle and we have to find the length and breadth of the same rectangle. हमें area given है, हमें length और breadth निकालनी है. area means क्या होता है? length. rectangle का area का formula होता है length cross breadth. इट मीन्स इस एक्सप्रेशन में लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई की हुई है, हमें उन्हें सेपरेट करके लेंथ और ब्रेथ बताना है. ओके, ठीक है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये एरिया है किसी रेक्टेंगल का. अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री की है. नेचुरली अगर ये किसी लेंथ है तो क्वाड्रेटिक है, तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे. उन 2 फैक्टर्स में वन में बी लेंथ, अनदर में बी ब्रेथ. तो हमें इसे फैक्टराइज करके फैक्टर्स निकालने हैं. ओके, तो आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 25a² minus 35a plus 12. ओके, इट इज द एरिया. वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. हमें इस वाली पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके इसके 2 लीनियर फैक्टर्स निकालने हैं. My dear students, we will just use our splitting the middle term method. Okay, and in this we have to find the 2 numbers a and b in such a way that their addition is minus 35 and their multiply is first का coefficient और last term. It means 25 cross 12. It means 300. हमें 2 नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनकी ऐड तो माइनस 35 और जिनका मल्टीप्लाई हो 300. ठीक है, तो सोचो और चूज करो. नंबर्स विल बी यस 20 and 15. द नंबर्स विल बी माइनस 20 and माइनस 15. जब माइनस 20 और माइनस 15 को ऐड करोगे तो आंसर क्या होगा? माइनस 35. एंड माइनस 20 और माइनस 15 की मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या होगा? 300, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. ओके, देन वन नंबर इज माइनस 20 एंड सेकेंड नंबर इज माइनस 15. तो आप इस सेकेंड टर्म को स्प्लिट करके इसे 20 और 15 की फॉर्म में लिख दो. ठीक है, माइनस 20 है, माइनस 15 है, प्लस 12. ओके, नाउ वी हैव टू मेक पेयरिंग एंड वी हैव टू टेक एनी नंबर एज ए कॉमन. ओके, अब मुझे बताओ, इन 2 की पेयरिंग करेंगे, इसमें से कॉमन नंबर क्या है? 5. 5 को बाहर निकाल लो. ठीक है, 5 और a भी कॉमन है तो आप a को भी बाहर निकाल लोगे. 5, ठीक है ना, a माइनस 4 यही होगा, 5a माइनस 4.
5 5 ज़ा 25 ए स्क्वायर और 5 4 ज़ा 20 और ए की मल्टीपल, ठीक है। अब इन दो नंबर में से कॉमन क्या है, माइनस भी कॉमन है क्योंकि मुझे फर्स्ट नंबर पॉजिटिव चाहिए, यहाँ फर्स्ट नेगेटिव का है तो माइनस को कॉमन ले लेना, ठीक है। -3 तो 5a, अब माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस क्या हो जाएगा नेगेटिव में, तो 4 कि 4 थी तभी तो 12 होता है, ठीक है। अब 5a - 4 इधर है, 5a - 4 है तो 5a - 4 को कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया 5a, यहाँ रह गया -3, ठीक है ना। दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो आप लिखोगे, अब इनमें क्या है, वन में भी लेंथ एंड अदर में भी ब्रेथ, आप लिखोगे हेयर वन दिस, इफ दिस इज लेंथ तो ये क्या होगी ब्रेथ, अगर मैंने इसे ब्रेथ लेंथ का है तो ये क्या होगी ब्रेथ, ठीक है ना। तो आप लिखोगे एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर, देन यू हैव टू राइट इफ या सो if possible expressions for length, possible expression for length is, if length is 5a - 4 then breadth क्या होगी 5a - 3. If I consider length as 5a - 4 then breadth is 5a - 3. and second case, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस, ठीक है ना। इफ लेंथ इज, या इफ पॉसिबल लेंथ इज, इफ पॉसिबल भी लिख सकते हो, इफ पॉसिबल लेंथ इज 5a - 3, पहले लेंथ 5a - 4 लेट किया था, अब लिख लो 5a - 3, ठीक है ना। देन ब्रेथ क्या होगी 5a - 4, अगर लेंथ मैंने 5a - 3 लिया है तो ब्रेथ 5a - 4 होगी, ओके। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज सेम एज फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या एक्सप्रेशन है, एरिया क्या गिवन है रेक्टेंगल का, सेकंड में हमें गिवन है 35 y स्क्वायर प्लस 13y - 12, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू, दिस इज द सेम एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, वी हैव टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द टू नंबर्स a and b, वी हैव टू चूज टू नंबर इन सच दैट a + b क्या हो 13 और a और b की मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 क्रॉस -12, इट मीन्स -420, ठीक है ना। मल्टीप्लाई -420 हो और एडिशन हो 13, ओके। तो चूज करो व्हाट आर दीज टू नंबर्स, यस द नंबर्स आर 28 - 15, ठीक है। देखो 28 में से -15 इनको ऐड करोगे तो आंसर विल बी 13 एंड इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर, प्लस माइनस माइनस होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -420, ओके। सो आप यूज करो, मिड टर्म को स्प्लिट कर दो, 35 y स्क्वायर प्लस, अब 13y के प्लेस पे मैंने लिखा 28y - 15y और -12 एज इट इज, ठीक है। अब सेम आपको पेयरिंग करनी है, इनमें से क्या कॉमन नंबर है 7, y भी कॉमन है 5y + 4, ठीक है ना। यहाँ से देखो दोनों माइनस है, हमें तो पॉजिटिव चाहिए तो आप -3 को कॉमन ले लो, -3 कॉमन होगा, यस -3 कॉमन एंड ब्रैकेट स्टार्ट, 3 कॉमन है 15 में से अंदर क्या रह गया 5y एंड माइनस कॉमन है तो यहाँ +4, ठीक है ना। अब फिर 5y + 4 दोनों में है तो 5y + 4 को आप बाहर कॉमन ले लोगे एंड अंदर रह गया 7y - 3, ठीक है ना। सो दीज आर, वन में भी लेंथ एंड अदर में भी ब्रेथ, आप लिखोगे गिवन एक्सप्रेशन फॉर, आप ये भी लिख सकते हो गिवन एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ आर, 5y + 4 and 7y - 3. This line is same as the last we wrote here. If length is this and breadth is this. ठीक है, दोनों लाइनें सेम, आप ये भी लिख सकते हो the given expression. So if given expressions of length and breadth are, ये दोनों expressions हैं length और breadth. Okay. Now my dear students, we will discuss 16th and the last term of exercise 2.5. This is very easy and same as
15 sum. In 15 sum, the area of rectangle is given and we have to find the length and breadth. And in the 16 sum, the volume of the cuboid is given and we have to find the possible dimensions. It means length, breadth and height. Okay. My dear students, if volume is 3x square minus 12, अब देखो वॉल्यूम किस नंबर्स की मल्टीपल होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट, LBH होता है ना. इट मीन्स जो वॉल्यूम है उसके 3 फैक्टर्स होंगे. उन 3 फैक्टर्स में वन में भी लेंथ, अदर में भी ब्रेथ एंड थर्ड में भी हाइट. ओके, तो आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, क्या है 3x स्क्वायर माइनस 12. अब इस 3x स्क्वायर माइनस 12 इस एक्सप्रेशन के 3 फैक्टर्स फाइंड आउट करो और दैट आर अवर डायमेंशंस. ओके, 3 कॉमन है, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, यही होगा. अब x स्क्वायर माइनस 4, देखो x स्क्वायर माइनस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूँ. अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या होता है, x माइनस वाई x प्लस वाई. देन वी हैव टू राइट हियर 3x माइनस 2 एंड x प्लस 2. ओके, सो आप लिखोगे, देखो 3 है ना, इसके पॉसिबल केस बहुत होंगे. दिस में भी लेंथ और दिस में भी लेंथ और दिस में भी लेंथ, 3 केसेस होंगे. सो डायरेक्ट वी कैन राइट हियर. सो द डायमेंशंस आर डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के है ना, आर 3, x minus 2, x plus 2. These 3 are the dimensions of cuboid. It means one may be length, other may be breadth and the third may be height. ठीक है ना? So this is the first sum and second sum is same as the first part. This is very easy. Here volume is given 12ky square plus 8ky minus 20k. Okay, so this is the volume of the cuboid. So we have to factorize this and we have to make 3 factors same as first part. Okay, तो पहले चेक करो कि क्या कॉमन है. k तीनों में है and 12, 8 and 20. 4 भी कॉमन आ सकता है, तो आप 4k को कॉमन ले लो पहले. ठीक है, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब 4k तो बाहर कॉमन है. दिस इज ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. वी हैव टू फैक्टराइज बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो हमें 2 नंबर ऐसे चूज करने हैं, इनकी एडिशन क्या है 2 और मल्टीपल ऑफ -5 क्रॉस 3, इट मीन्स -15. ओके, तो 3y स्क्वायर, तो 2 मीन्स मैं 5 और 3 ले लूँ, 5y माइनस 3y. देखो 5y माइनस 3y प्लस 2y हो गया और प्लस 5 माइनस 3 माइनस 15 बन गया ना. देखो 5 और -3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर -15 ही आएगा और 5 और -3 को ऐड करोगे तो आंसर 2 आएगा. ओके, सो वी कैन फैक्टराइज एंड -5 एज इट इज. ठीक है, तो 4k, अब फर्स्ट 2 और लास्ट 2 के क्या करो, पेयरिंग करो. इसमें से कॉमन क्या है, y कॉमन है, 3y प्लस 5. ठीक है ना, हमें पॉजिटिव है तो अगली ब्रैकेट में पॉजिटिव चाहिए, तो नेगेटिव मैंने -1 को कॉमन ले लिया. 3y, अब इसमें बस माइनस बाहर आए तो ये हो जाएगा +5, क्योंकि प्लस माइनस तभी तो माइनस बनेगा. ओके, तो अब माय डियर स्टूडेंट्स फिर अगेन 3y प्लस 5 फिर कॉमन है, तो आप लिखोगे 4k इंटू 3y प्लस 5. तो नेक्स्ट क्या रह जाएगा, यहाँ से y और यहाँ से -1. ठीक है, सो ऑल 3 डायमेंशन आर दिस. 3 फैक्टर्स आ गए, 4k, 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1. सो आप लिखोगे सो डायमेंशंस of cuboid are 4k and 3y plus 5 and y minus 1. These 3 are the dimensions हैं. तो इनमें से कोई भी एक लेंथ है, अदर में भी breadth and the third one may be a height. Okay, so now we completed our exercise 2.5. So it's your responsibility that you have to revise this exercise and your notebook should be complete. My dear students, it's a humble request. You have to take care of yourself and your family. Okay, my dear students? And if there is any doubt, then you can comment.